Hello, defense aspirants. Welcome back to Lakshya Defense Preparatory Academy, and we are back with another video and most important part of your CDS NDA FCAT examination, that is current affairs. Okay, so this video contains the part 1 of the most important current affairs in last 6 months. Okay, so in series we are going to cover these current affairs in different parts. I will be covering the latest months current affairs also, May, June and July, and also from January to April. Okay, so these current affairs will be covered through these parts of videos. Okay, so this is part 1, and definitely more parts are more parts will be coming in the near future. Okay, so if you are new, so definitely watch our series of vocab, and it is already been uploaded, and there is a playlist of mastering vocabulary. 11 videos are already there. Lot of previous year latest CDS 125 vocabulary is being included in that. The level is maintained as per those current standards of NDA and CDS vocabulary. So definitely do watch those videos also. And this is your part 1 of current affairs. I hope you all are preparing well and your preparation is going well. And to boost that preparation, we are here with this current affairs part. Okay, so without wasting any time, let us move to the very first current affair of this video, that is Iran Azerbaijan hold joint military drill. Okay, good. So the name of this military drill is Aras 2025. Very important. Okay, military drills, because you're going for a examination which is more related to defense and armed forces, so you definitely be known or aware of these military exercises that is happening around the globe. Okay, so Iran and Azerbaijan, these both countries are in news number of times. Okay, how Armenia Azerbaijan conflict. Okay, that's why this country is in news. Iran recently, Israel bombed Iran nuclear sites, so that's why they are in news. So whatever news coming related to them, and it is very latest, see May 18 2025. So it is very important for you to note down these important military exercises. So let us understand more. थोड़ा सा और जरा देखते हैं, क्या इंडिया और इजराइल भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी. लेट्स सी. इंडिया इजराइल डू exercise which is called blue flag. It is air force exercise of both of the countries. Remember this thing. Okay, both of the air force of these countries participate, and ultimately it is more of aerial combat, counter terrorism, enhancing operational capabilities. So all of these things we covered in these exercises. So very important, because India Israel relations are there, despite all of those tensions and conflicts that Israel is right now, we have a good relations, and we import a lot of defense equipment from Israel. Okay, so that's why it become more important now. Very much is in news, and very high chances to come in this examination. Next year, sports minister announces introduction of multiple games in Khelo India scheme. Very important. Sports are the integral part of our lives, and it should be integral part of our education system also. So it become very important part, and moreover, right now we are also trying to include, or you can say we are trying to host 2036 Olympics. Okay, there is a bidding going to happen soon, and India is very keen to host this thing, and that's why we introduced our national sports policy 2025. Okay, that is very important. I will be covering these things in upcoming videos. Okay, so these are very important. Sports, related to sports news, are very favorite of UPSC. So which all sports being included? Very important. Sipak takraw, beach soccer, beach volleyball, beach kabaddi, pancak silat, then open water swimming, e-sports, kalarepattu, thangta, ghatka, all these sports are being included now in Khelo India scheme. Very important. Okay, so next is your Operation Olivia. Okay, now Operation Olivia is more of related to the olive ridley turtles. Okay, now these turtles are came into IUCN red list, because because of pollution, because of poaching, and lot of temperature issues, climate changes,
they are not able to do their mass nesting properly in the last in a few decades, if you can say, okay, because of lot of human activities obviously, okay. And in the process when they come for mass nesting, no, that process is called kurma mela. Very important, okay. They can ask you what do you mean by the term kurma mela. It is mass nesting of olive ridley turtles. Very important thing, okay. So these are renowned for their now these turtles, actually, why they are famous, why they are unique from a regular, because they are known for their synchronized mass nesting events. That is called aribada. Aribada means arrival, when they come on the coastal areas and they dig the sand and they lay their eggs there in the mass, greater amount in magnitude. They come and they do the mass nesting of their eggs, okay. Very important. Right now, if you see the contribution of Coast Guard, record production of 6.98 lakh olive ridley turtles around Rushikulya river mouth, Odisha. Very important. This Rushikulya river is important part of it. Then patrolling and surveillance by ICG conducted 5387 surface patrol sorties. All of these things are part of Coast Guard. Then how they are improving to save them, to make their nesting more feasible. These all things are important because Operation Olivia plays a crucial role in marine conservation and ensuring the survival of these endangered species, which is our responsibility to save these endangered species, okay. They come in red list. That is very critical, okay. Next is your International Booker Prize. Very important, okay. International Booker Prize, given to the book that is called Heart Lamp, and ultimately translated by Deepa Bhashti, and ultimately moreover you can say that there is one more award that is called Gyanpith Award. It is the highest literary award. इसके बारे में पूछता है. Right now 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया था. Actually it is 2023 के अवार्ड जो थे पेंडिंग थे. It is not given the 2023 for that means ज्ञानपीठ जो है 58th तो 2023 में देना चाहिए था. It is given in 2025 now. So 2 people actually got this ज्ञानपीठ award. Number 1 is Jagat Guru. Just write, okay, if you have notes, it is very good. ठीक है, Jagat Guru राम भद्राचार्य, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया था, ठीक है, फॉर हिज संस्कृत लिटरेचर. ध्यान रखना, लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत लिटरेचर. एंड सेकेंड वन इज वेरी फेमस गुलजार जी, ठीक है, गुलजार जी को दिया था फॉर हिज उर्दू लिटरेचर, ठीक है. ध्यान रखना, इन दोनों को अभी रिसेंटली जो है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है, विच इज हाईएस्ट अवार्ड इन लिटरेचर, ठीक है. ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे, मिजोरम हैज क्रॉस्ड द फुल लिटरेसी मार्क अबव 95% रेट. वेरी इंपॉर्टेंट. सी पॉइंट इज दैट whenever you say a state or a UT is fully literate, that means they cross the 95% of literacy rate, okay. Then it is considered to be fully literacy. Right now, if you see, there is a scheme that is played a very crucial role, ULLA scheme, that is Nav Bharat Saksharta Karyakram. That means a New India Literacy Program, which ultimately aligned with our National Education Policy 2020, which targets the adults of age 15 and above, okay. And ultimately which components it focus on? Foundational literacy and numeracy, critical life skills, basic foundation, vocational skills and continuing education. So not only मिजोरम, अभी रिसेंटली क्या है कि त्रिपुरा, मैं आपको लेटेस्ट भी बता देता हूँ, त्रिपुरा भी लेटेस्ट जो है फुली लिटरेट जो है स्टेट बन गया है. एंड राइट नाउ recent being में including Goa, Tripura and Mizoram, these 3 become the full literacy states. They cross the full literacy mark, that is 95% of literacy rate in the state. Remember, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीधा ही, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी फॉर्मली इंडक्टेड एंड नेम एन एंशिएंट शिप INSV
Kundaniya, very important. This Kundaniya is a stitched, that means made up of wooden, and in a traditional way, that like the traditional ships are used to be, it is, it is made in that same or similar traditional method. Okay, we're using wooden, and the not no machinery, no metal is used. It is more of all wooden, like ancient ships were made in the similar manner it is made. So they can ask you the name. Okay, it is stitched ship, it is more of called stitched. Okay, next is Cannes 2025. Okay, Jafar Panahi, he is an Iranian director. Iranian, again Iran is in news, so very important. It was just an accident. He got the Palme d'Or. Okay, even the Palme d'Or for his movie. It was just an accident. Very important, who he directed, very important name, and the movie and the award Palme d'Or. Okay, very important for FCAT. ठीक है, एफकैट के लिए तो है ही है, बाकी सीरियस और एनडीए दे कैन आस्क इन एनी टाइम. ठीक है, स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन भारत फोरकास्ट सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, इज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप हाई रेजोल्यूशन भारत फोरकास्ट सिस्टम. दैट मीन्स टू obviously by meteorological department only to monitor the weather predictions for the farmers. It will going to help the farmers very much. Okay, to predict the rain and the droughts early, or higher temperatures, higher rainfall, low temperatures, all of these things can be predicted much early, and the farmers and people can take the precautions early. Okay, very important. Bharat forecast system किसने डेवलप किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी टू वेलकम नाविका सागर परिक्रमा 2. वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू women officers have been in news since a very long time, and ultimately they are continuously being a part of news. बट अभी तक क्वेश्चन इनका नहीं पूछ रहा है. आई डोंट नो वाई, अभी तक पूछ लेना चाहिए था. बट हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि CDS टू NDA टू इधर FCAT में किसी ना किसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर फंसेगा. बिकॉज पॉइंट इज दैट they achieved very historical landmark, that is to cross a distance of 25,400 nautical miles, which is approximately 50,000 kilometer on a ship, which the name of ship is INS Tarini. ठीक है, it's a more of sailing vessel. ठीक है, INSV. Then the you can say under which program? Navika Sagar Parikrama 2. Okay, they already did one, and this is one too. Who are those? Lieutenant Commander Rupa and Lieutenant Commander Dilna K. They also visit a point that is called Point Nemo. That is important here. Point Nemo is actually the farthest point in which Pacific Ocean. ध्यान रखना, Point Nemo जो है, it is in Pacific Ocean. ये एग्जाम में पूछ लेगा भाई, ये एग्जाम में पूछ लेगा कि पैसिफिक ओशन में जो पॉइंट है, या फिर ऐसा बोलेगा नेमो पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ओशन. पैसिफिक ओशन में इट इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंड मास. रिमेंबर माई वर्ड्स, फ्रॉम एनी लैंड मास, फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड, और यू कैन नॉट नियरेस्ट, इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम एनी लैंड मास in Pacific Ocean. Okay, they cross this point Nemo. Okay, that is very important and very extraordinary achievement. Next is the India Mongolia joint military exercise nomadic elephant. Very important military exercise, as I told you, very important part of it. ठीक है, so Indian army and obviously Mongolian army के बीच में जो ये एक्सरसाइज हुई है nomadic elephant. और कुछ एक्सरसाइज अगर हम देख लें, देखो मिडिल ईस्ट इज ऑलवेज इन न्यूज़, तो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेजर्ट साइक्लोन, इट इज़ विद इंडिया एंड UAE. ठीक है, इंडिया एंड UAE. देन एक्सरसाइज साइक्लोन 1, इट इज़ विद इंडिया एंड इजिप्ट. ओके, इंडिया एंड इजिप्ट. ओके, इसके अलावा जैसे कि इंपॉर्टेंट आप देख लो, सादा तंसीक, ये है आपका इंडिया एंड सऊदी Arabia. So these Middle East countries are very important. If we are doing any military exercise with them and they are in news, continuously in news, so ये और ज़्यादा important बन जाता है आपके लिए. ठीक है, जैसे कि अगर ओमान की बताऊँ मैं आपको, ओमान के साथ करता है इंडिया ओमान, बता देता हूँ. 2-3 एक्सरसाइजेज हैं इंडिया ओमान, एग्जाम में पूछ लेगा, ध्यान रखना. ठीक है, इंडिया ओमान में जैसे कि अल नगा, इट इज़ नेवी एक्सरसाइज ऑफ बोथ ऑफ दीज कंट्रीज. ठीक है, एंड अल नगा नॉट नेवी, सॉरी, इट इज़ आर्मी की है भाई, ये नेवी की नहीं है. ठीक है, अल नगा. उसके बाद
नसीम अल नसीम अल बहार, ये आपकी नेवी की है। नसीम अल बहार आपकी नेवी की है। फिर आपकी बात करें ईस्टर्न ब्रिज, मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा भाई एग्जाम में, बता रहा हूँ अभी, मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज पूछ लेगा, ये आपकी एयरफोर्स की है। डिफेंस एक्सरसाइज करके जाना, ठीक है। अब कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। मुझे इंडिया यूएस की नेवी की बताओगे आप, ठीक है। इंडिया यूएस की नेवी की नाम बताना मेरे को, ठीक है। और इंडिया यूके की नेवी की बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कितना पढ़ रहे हो, कैसे क्या है। चलो नेक्स्ट है आपका ड्यू इज अ नेशनल एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दमन एंड दीव जो हमारी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, दे आर दो डिस्ट्रिक्ट, यू कैन से कम्स अंडर यूटी, ठीक है। तो ड्यू इज ऑब्वियसली वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इट बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट एंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बन जाता है, बिकॉज सी वी आर ट्रांजिटिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, सो हैविंग दीज अचीवमेंट and where a district is completely reliable on renewable source of energy, that is solar energy, that is a very good landmark. So ये important आपके लिए न्यूज़ में बन जाता है कि ड्यू जो है ये आपका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसा अब तक बन के आ गया इंडिया का जो पूरा का पूरा जो सोलर एनर्जी पे रन करता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज चाइना लॉन्चेस तियानवेन 2 टू कलेक्ट एस्ट्रॉइड सैंपल बाय 2027। इंपॉर्टेंट है, किस लिए लॉन्च किया, किस कंट्री ने लॉन्च किया, क्या टारगेट है, ठीक है, कौन से एस्ट्रॉइड की बात हो रही है, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मिस वर्ल्ड 2025। मिस वर्ल्ड 2025 जो है वो बने हैं आपके ओपल सुचाता जो है थाईलैंड के हैं, कौन सी कंट्री के हैं, इंपॉर्टेंट नेम एंड मिस वर्ल्ड कौन बना, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन है, इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है अभी रिसेंटली क्या है, एक हमारे इंडियन F2 रेसर हैं कुश मैनी जो है F2 रेसर हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने F2 मोनाको स्प्रिंट रेस, F2 है, F1 नहीं है, ध्यान रखना, फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये इसका जो है इट इज़ फर्स्ट एवर टाइटल जो अभी हमने जीता है, फर्स्ट एवर टाइटल जो हमने एज अ इंडियन ने जो या किसी इंडियन ने जीता हो, ये क्लेम किया हो किसी भी रेसिंग में, ठीक है। F2 मोनाको स्प्रिंट रेस एक इवेंट हुआ था, उसमें कुश मैनी जो है उन्होंने फर्स्ट एवर टाइटल इसका जीता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट DRDO कैरीज आउट सक्सेसफुल मेड इन टेस्ट फ्लाइट और लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। एग्जाम में पूछ लेगा ये क्या है, गौरव क्या है, इट इज़ अ ग्लाइड बॉम्ब। ध्यान रखना किस पे यू टेस्टिंग हुई, Su-30 पे, ठीक है, ओडिशा कोस्ट पे। इट कैन एयर लॉन्च 1000 kg ऑफ क्लास ग्लाइड बॉम्ब केपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट एट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। किसने डिज़ाइन किया, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसने डेवलप किया वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या इसकी रेंज है वो तो है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड है, पूछ सकता है आपको, ठीक है। DRDO ने इसको बनाया है, गौरव, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी दो तरह की एक्सरसाइज होती हैं, बायलेटरल एंड मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल में क्या होती हैं, आप समझो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और कोई अगर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अगर हमें पता हो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मालाबर हो गई, ये होती है इंडिया, US और जापान के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट नाइट भी ध्यान रखना, ये आपकी सारी की सारी मल्टीनेशनल हैं, इंडिया करता है, ठीक है, फ्रांस करता है और UAE साथ में, ठीक है, ये हो गया क्लियर, ध्यान रखना। फिर आती है आपकी खान क्वेस्ट, ये भी एक मल्टीलेटरल है, ठीक है, मंगोलिया में होती है, ठीक है, मंगोलिया भी इसका पार्ट होता है, मंगोलिया में हुई भी थी लेटेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी मल्टीलेटरल है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट कुशा, बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वी नो दैट इंपॉर्टेंस ऑफ आर एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिमिलरली S-400 और आयरन डोम जो इजराइल के पास है, इजराइल के आयरन डोम की तरह, ठीक है, रशिया के S-400 की तरह हम लोग भी अब कुछ अपना
आप कह लो कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट टेस्ट जो है M1 इसके मिसाइल का जो लॉन्ग रेंज है सरफेस टू एयर, समझ में आया? सरफेस टू एयर कैसे, ग्राउंड है ऐसे, तभी तो एयर डिफेंस होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो M1 जिसको हमने बोला है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस एयर मिसाइल। M1 हैज़ रेंज ऑफ 150, M2 एंड M3 प्लान की जिनकी रेंज और भी बढ़ के निकल के आएगी 250 एंड 350, ध्यान रखना। द नेवल वेरिएंट ऑफ M2 डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ऑल्सो, ठीक है, ASBMs को भी काउंटर करने के लिए बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिफेंस डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च व्हीकल। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि अभी तक क्या है कि पोल्स पर, जैसे अंटार्कटिका की बात करें, ठीक है, या फिर आर्टिक सर्कल की बात करें, वहाँ पे अभी तक हमारा कोई पोलर रिसर्च व्हीकल नहीं है, ठीक है, या वेसल नहीं है। तो उसके डिज़ाइन में जो है हमने नॉर्वे से, जो है नॉर्वे ने ऑलरेडी बना चुका है, तो वहाँ से हम लोग टेक्नोलॉजी शेयरिंग उनसे लेंगे, ठीक है। उनके साथ मिलकर हम जो है एक अपना खुद का पोलर रिसर्च वेसल बनाएंगे, जिसमें हमारे साइंटिस्ट जो हैं पोलर एरिया पे, जैसे कि अंटार्कटिका और आर्टिक सर्कल पे जाके जो है रिसर्चेस करेंगे। ये कम अंडर आता है सागर इनिशिएटिव। अभी सागर इनिशिएटिव को PM नरेंद्र मोदी जी ने हम इसको महासागर बना दिया। महासागर का फुल फॉर्म पूछ लेगा, म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल मतलब दोनों का हो, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, एडवांसमेंट हो, डेवलपमेंट हो, किस चीज़ में, अक्रॉस रीजन, हर एक रीजन की सिक्योरिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो महासागर और सागर जो है, सागर इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको अब महासागर इनिशिएटिव जो है बोल दिया है, जिसके अंदर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक जो भी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। सिक्योरिटी और ग्रोथ तो था ही, ठीक है, अब उसमें म्यूचुअल और होलिस्टिक भी आ गया, दोनों आपस में मिलकर ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। डेट इज इंपॉर्टेंट। थीम जो इस बार की थी, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की क्या थीम रही है, कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये होस्ट कहाँ हुई, ये समिट कहाँ होस्ट हुआ, इवेंट कहाँ होस्ट हुआ, साउथ कोरिया में हुआ, ठीक है। साउथ कोरिया ने क्या वहाँ पे इवेंट में मेन डिसीजन जो, या मेन आप कह लो कि बात जो कही, वही कही कि VR साउथ कोरिया जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को 2040 तक एलिमिनेट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट इसका बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन नेवी टू सेट कमीशन अरनाला इज फर्स्ट इन ASWC। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये एक्चुअली ASWC का मतलब क्या समझना जरा। फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में, बता रहा हूँ, ठीक है। एंटी सबमरीन, ध्यान रखना, एंटी सबमरीन, शिप नहीं है, सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ध्यान रखना। तो ये अरनाला है, पूछ लेगा कि इसमें से एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट क्या है, नाम अरनाला, ठीक है, ध्यान रखना जी, ठीक है। क्या कर सकता है, कंडक्ट सब सरफेस सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, ठीक है। 80% इंडिजिनियस कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वी आर प्रोमोटिंग इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया थिंग्स, ओके। Next is Union Minority Affairs Minister ultimately launched उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिसेंटली वक्फ जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ बोर्ड जो है न्यूज़ में रहा है, उसके रिगार्डिंग उम्मीद पोर्टल जो है वो किया है, जिसका मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अंडर दिस थिंग, ठीक है। इसी के अंदर जो है एक्ट के अंदर जो है इस उम्मीद पोर्टल को बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, जो भी आप कह लो कि एक डिजिटलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में रहा है ये। नेक्स्ट, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। अब ये रिसेंटली क्या है कि बहुत हैवी मैग्नीट्यूड में जो है ड्रोन अटैक हुआ था, जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर करा था। यूक्रेन रशिया न्यूज़ में है कॉन्टिन्यूसली, द वॉर इज कॉन्टिन्यूसली इज देयर एंड तो उसमें से एक ऑपरेशन का भी रिसेंटली नाम निकल के आया था, ऑपरेशन स्पाइडर, जिसमें मास जो है ऑलमोस्ट 117 एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन जो है लॉन्च किए गए थे रशिया के ऊपर, और उनके एयरक्राफ्ट वगैरह भी डिस्ट्रॉय किए थे। बहुत न्यूज़ में भी रहा था ये, ठीक है। उनके मेजर एयरक्राफ्ट्स को जो है आप कह लो कि डैमेज पहुंचाया था, ठीक है। FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, उनके आगे कैमरे लगे होते हैं एंड कैन बी कंट्रोल थ्रू रिमोट्स एंड दैट कैमरा जो है वो आपको फर्स्ट पर्सन व्यू देता है वहाँ से, ठीक है। नियर बाय देखो, रशिया इनसाइड मोबाइल वुडन कैबिन ऑन ट्रक्स, तो वहीं पे कहीं ट्रक्स में लोडेड था, तो वहाँ से लॉन्च किए गए थे एक साथ। तो 117 टोटल, बहुत बड़ा ड्रोन ऑपरेशन था ये, ठीक है, यूक्रेन की तरफ से ऑन रशिया। नेक्स्ट अगर बात करें, रिसेंटली हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है हमारे
आप कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, जिसमें हमने चेनाब ब्रिज को बनाया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर अंजी ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके फैक्ट्स ध्यान रखना, ठीक है, किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट हुआ, जिसके अंदर T50 जो टनल है वो लॉन्गेस्ट ऑपरेशन टनल इन इंडिया बन जाता है। ये फैक्ट ध्यान रखना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा दिया न्यूज़पेपर से उठा के, ठीक है। उसके बाद चलो, ये तो 2 वंदे भारत फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन टू श्रीनगर, ठीक है। तो 2 वंदे भारत भी रूट में श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर एंड अल्टीमेटली दीज 2 रूट्स पे, इसी रूट पे जो है 2 वंदे भारत ट्रेन जो है चलाई गई हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ध्यान रखना, ये जो फैक्ट जो इसमें लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, कि किस फर्स्ट केबल ब्रिज कौन सा है, हाईएस्ट रेल आर्क कौन सी है, और इसी के अंदर जो हमने रेल लिंक प्रोजेक्ट बनाया उसमें टनल T50 जो है लॉन्गेस्ट टनल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कोको गॉफ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोको गॉफ रिसेंटली जो है वो फ्रेंच ओपन जो जीत गए हैं। फ्रेंच ओपन को रोलांड गैरोस भी बोला जाता है, ये क्ले पे खेला जाता है। तो इसके अलावा भी और कोई टेनिस इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, ठीक है, और यूएस ओपन भी होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन जो ये हार्ड सरफेस पे खेले जाते हैं, ध्यान, हार्ड सरफेस, ठीक है। वेरस अभी रिसेंटली विंबलडन चल रहा है, ठीक है। तो विंबलडन जो चल रहा है अभी, ये खेला जाता है ग्रीन पे। इसके भी रिजल्ट अभी आ जाएंगे, करंटली अभी ये ऑनगोइंग इवेंट है, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है इसके भी रिजल्ट आ जाएंगे। ये भी आपका करंट अफेयर्स का पार्ट जो है बन जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोको गॉफ ने तो अल्टीमेटली किसको हराया, आर्याना सबलेंका, ये नंबर 1 है, ठीक है। ये इनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है टेनिस में, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन की विनर जो है कोको गॉफ रही हैं, ठीक है। हर जगह आर्याना सबलेंका मत कर देना, अभी ये खेल भी रही हैं अभी इस इवेंट में, ठीक है। विंबलडन में खेल भी रही हैं, क्या पता जीत जाए, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं बता दूंगा, उसमें अपडेट कर दूंगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रोफेसर रियाज अहमद शाह एंड हिज टीम एट द एम्ब्रॉय बायोटेक्नोलॉजी। एक यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SQAST बोला जाता है, श्रीनगर में। इन्होंने क्या किया है, एक जो शीप है उसको, इट इज़ अ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप, जीन को एडिट करके बनाया गया, जीन मॉडिफाइड, जिसके इसकी फर जो है अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी, जल्दी ग्रोथ होगी, हेल्दी रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। जीन को एडिट करा है, तो उसका नाम क्या, कश्मीर मेरिनो, ठीक है। कश्मीर मेरिनो जो है एक, ये फर्स्ट जीन एडिटेड शीप बनाई गई है। कहाँ बनाई है, किसने बनाई है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन है, प्रोफेसर रियाज अहमद शाह, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें, रिसेंटली जो है पीएम मोदी साइप्रस क्रोशिया जो है विजिट में गए थे, ठीक है। अभी G7 की जो है मीटिंग हुई थी, ठीक है। G7 की मीटिंग थी, वहाँ पे ही इज़ इन्वाइटेड देयर, ऑल्दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7, बट वहाँ पे इन्विटेशन आया था, ठीक है। इटली ने होस्ट किया था इस बार, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इटली ने होस्ट किया था। एग्जाम के लिए G7 कंट्रीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। G7 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ, मैं भी रिसेंट वाला ही बताता हूँ, ब्रिक्स समिट हुआ, तो ब्रिक्स समिट की कंट्रीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी और जो आता अभी रिसेंटली क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की कई सारे कंट्रीज़ की विजिट में, जैसे घाना की, अर्जेंटीना की, ठीक है, ट्रिनिडाड की भी विजिट्स हैं। तो 2-3 विजिट्स उन्होंने की है, वेरी इंपॉर्टेंट विजिट्स, क्योंकि रिगार्डिंग आपके करेंसी से रिलेटेड, ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड पूछ लेगा क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है, FCAT में पूछता है। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज ध्यान रखना कौन कौन सी हैं। ब्रिक्स, अभी ये तो 500 थी फाउंडिंग मेंबर्स, दे आर फाउंडिंग मेंबर्स, नाउ 6 मोर कंट्रीज आर एडेड, 6 मोर कंट्रीज आर एडेड। आप मुझे करंट कमेंट सेक्शन में 6 मोर कंट्रीज का नाम लिख के बताएंगे, ठीक है। इसमें 6 कंट्रीज कौन कौन सी ऐड हुई हैं। एक मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ईरान भी इसके अंदर पार्ट बन गया है, ठीक है। ईरान, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इजिप्ट भी इसका पार्ट बन गया है, ठीक है। यूथोपिया भी इसका पार्ट अभी बन गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो मैंने बता दी भाई, 2 तो लिख दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज दीज विज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका समझो न्यूज़ में रही हैं, पीएम की विजिट है, तो अगेन इनकी कैपिटल ध्यान रखना, इनकी करेंसी ध्यान रखना, क्या है वो इंपॉर्टेंट है। साइप्रस जो है आप कह लो कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी और बन जाता है बिकॉज मैं बताता हूँ, अगर साइप्रस आप देखोगे इट इज़ मोर लुक लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुर्की है, तुर्की थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ। तुर्की ने क्या कर रखा है एक्चुअली, तुर्की ने नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस को जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपना फ्लैग वगैरह लगा रखा है, इसको ये बोलता है कि द रिपब्लिक ऑफ तुर्किश साइप्राइट्स, ठीक है।
जो साइप्रस होते हैं वहाँ के लोगों को साइप्रॉट्स बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि दो तरह की यहाँ पे लोग रहते हैं, ऑब्वियसली मुस्लिम्स जो इस्लाम में मानते हैं, जो ऑब्वियस बात है, बिलोंग्स पीपल कमिंग फ्रॉम तुर्की है, थोड़ा छोटा ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है दोनों। एंड अदर आर क्रिश्चियंस एक्चुअली इनके जो एंसेस्टर्स जो रहे हैं, दे आर फ्रॉम ग्रीक्स, तो ऑब्वियसली बात है क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियंस रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, बिकॉज ऑफ दिस व्हेन थोड़ा सा मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ ओटोमन एम्पायर के टाइम पे, क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर व्हेन यू कैन से एट दैट टाइम सम ऑफ द टर्किश पीपल स्टार्ट रिजाइडिंग इन साइप्रस, एंड एट दैट टाइम जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, तुर्की एक देश बन के आया, तो टर्की ने क्या किया, उस नॉर्थन पार्ट को इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया। पॉइंट इज हेयर दैट नो वन इन द वर्ल्ड रिकग्नाइज दिस ऑक्यूपेशन, ठीक है, कोई रिकग्नाइज नहीं करता, ओनली एक्सेप्ट तुर्की है, ठीक है, तुर्की के अलावा और कोई भी इसको रिकग्नाइज नहीं करता, तो ऑब्वियसली इलीगल ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने जो है वेरी क्लोज टू दिस, यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, एक मार्जिन है जिसको बोला गया है ग्रीन लाइन, ठीक है, इसको ग्रीन लाइन बोला गया है। ये ग्रीन लाइन जो है यूनाइटेड नेशंस ने ड्रॉ की है कि दिस इज मोर ऑफ अ बफर जोन, ठीक है, ये एक्ट करेगा किसकी तरह, बफर जोन की तरह, यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ दोनों कंट्रीज में से कोई भी नहीं करेगा। तो उस ग्रीन लाइन पे जो है क्लोज टू वेरी दिस ग्रीन लाइन पीएम मोदी जो है इनके जो आपको दिखाता हूँ अभी रिसेंटली, इनको हाईएस्ट ऑर्डर भी दिया गया, हाईएस्ट ऑर्डर भी दिए गए साइप्रस के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, तो उनके साथ वो खड़े थे, तो इट शोज़ कि देखो एक्चुअली क्या है, टर्की ऑलरेडी सपोर्टेड पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, और वेरएज अगर साइप्रस का स्टैंड अगर हम देखें, साइप्रस अपोज टेररिज्म and support India's stand on Kashmir issue, okay, that illegally occupied Pakistani occupied Kashmir, okay, so Cyprus supports that stance of India, so it become very important। और वहाँ पे तुर्की ने जो वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो इसलिए जियोपॉलिटिकली दिस विजिट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। अगर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको और एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एक चीज़ जाने से पहले एक चीज़ और, ये एड्रियाटिक सी जो है किस किस कंट्री से बॉर्डर टच करता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, इटली, स्लोवानिया, क्रोशिया, ठीक है, एंड अल्बेनिया, ठीक है, मॉन्टेगैरो, ठीक है, बॉस्निया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना किसके टच करता है, एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है, एड्रियाटिक सी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इंडिविजुअल्स हैज बीन चोजन, इनकी कंट्री, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है, पूछ लेगा किसी भी कंट्री किसी भी नाम के साथ, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ सकता है, और डायरेक्ट स्टैटिक भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी 27 May 9 become the first woman officer appointed as ADC to the president, very important यार, बहुत important achievement, बहुत important for women empowerment, those girls and aspiring girls want to join forces, so उनके लिए एक बहुत ज़्यादा motivational thing ये बन जाती है, that yes, women can reach to the greater heights and women can also get those you can say positions which usually meant for men, ठीक है, ऐसा था, it is just an mindset that ठीक है men ही इस जगह पे होंगे, but now women are outshining in every field, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है, एज आई टोल्ड यू, ये ऑर्डर भाई पीएम मोदी जी को तो बहुत सारे ऑर्डर्स एंड ऑनर्स मिल गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत लिस्ट है इसकी, तो मतलब 10 to 15 orders and honors he already got. So recently he got the Cyprus Grand Cross of Order of Markios 3, very important, ठीक है। इसके अलावा भी रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो रशिया ने भी दिया है, ठीक है, रशिया का बता देता हूं, जैसे इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल, और वहीं पे अगर बात करें हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान ने भी दिया है, ठीक है, भूटान ने भी दिया है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, इसको आप कह लो कि निकनेम या शॉर्ट फॉर्म में ड्रुक ग्याल्पो भी बोला जाता है, ड्रुक ग्याल्पो, ठीक है जी, ये है। नेक्स्ट अगर बात करें अचल जो है अभी रिसेंटली, अचल इज द 5th फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, FPV है, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है, इन अ सीरीज ऑफ 8 बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अभी 8 बनेंगी इसमें, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल में 8 निकल के आएंगी, पहली रेडी हो चुकी है, ठीक है, किसने बनाई है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, किसको दी है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या है ये 5th
फास्ट पेट्रोल, वैसे तो टोटल इसके अंदर 8 आएंगे, ठीक है। ये दिस इज 5th, अभी रिसेंटली इंडक्ट की गई है, दैट्स वाई इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 1 फॉर यू गाइज, और आई होप यू आर मेकिंग नोट्स विद इट। ये पीडीएफ जो आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगी, मेक श्योर यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड पीडीएफ आपको यहाँ पे इजीली एक्सेस हो रही है। दिस इज पार्ट 1, और मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। विल बी हैविंग अ गुड डिस्कशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। जो भी अपने डाउट्स हैं, जो भी वट एवर यू वांट, वट एवर यू सीख कि सर ये भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट्स हैं आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, या तो इस नंबर पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर दो। बहुत सारे आप कह लो कि जो बैचेस में टेस्ट चलते रहते हैं वो भी अपलोड होते रहते हैं, और फ्री कंटेंट भी काफ़ी डालते रहते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर you keep in touch with us. We'll be keep giving you more content which is more relevant for your examination. See you, bye bye, take care, jai hind.